Students, today we are going to discuss about the bandwidth. So we have already discussed the power and the variation with the frequency of the power which is supplied to the oscillator by the driving force. So we have found that the power was supplied, which was maximum, which was equal to F naught squared upon 2R. This is at a particular frequency, which is the natural frequency omega naught, which is equal to under root S upon M. But otherwise, at the very lower frequencies and at the very high end, the power was approaching 0. So this was a typical curve which was obtained with the variation with velocity of the power with the driving force, frequency of the driving force basically. So today we are discussing the bandwidth. So bandwidth could be described as the width of the band. This is a whole band. So the width of the band where the power is half. So ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ F naught square upon 2R, तो पावर का तुसी हाफ कर दो, अद्धा कर दो पावर का अद्धा कितना हो जाएगा F naught square upon 4R. ठीक है, 1/2 नाल मल्टीप्लाई कर दो या फिर 2 नाल डिवाइड कर दो कह लो. तो ये जी चीज़ है ये तुहाडी इत्थे बनदी है, विच ये मतलब पूरी चीज़ आ, इहदा हाफ इत्थे बनदा है. तो ये हाफ दे नाल तुसी बिल्कुल जिवें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो तो जिथे जिथे तुहाडी फ्रीकुएंसीज जिवें इत्थे इत्थे 2 कट करदियां ने ते ω2 माइनस ω1 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੈਂਡਵਿਡਥ. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏਗੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ. ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਰਵ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ frequencies of the driving force on the either side of velocity resonance frequency, which is omega naught square, omega naught. ਸੋ ਓਮੇਗਾ ਨੌਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਓਮੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਟ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਟੂ ਹਾਫ ਆਫ ਇਟਸ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ. ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਹਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੈਂਡ ਵਿਡਥ ਆ. ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੈਂਡ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਡਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ W2 ਮਾਈਨਸ W1. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡ ਵਿਡਥ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ. ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਲ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਏਗਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ. ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਅ ਫੋਰਸਡ ਆਸੀਲੇਟਰ. The quality factor is defined as 2 pi multiplied by the total energy, which is average energy stored in the oscillator, divided by the energy dissipated per cycle. तो ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ U average divided by ਜਿੰਨੀ एनर्जी dissipated per cycle ਹੈ ਉਹ ਸੀ P average ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ. तो P average basically ਕੀ ਸੀ, एनर्जी dissipated per cycle per unit time. तो T ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ P ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ T ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਡਿਸੀਪੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ U ਦੀ ਔਰ P ਦੀ. ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ F naught cos of omega T. ਔਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਲੀਅਰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ. ਤਾਂ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪਲੱਸ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, dx/dt ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ. ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
प्लस हाफ एस और एक्स का स्क्वायर करना, यानी कि ये जिहड़ा क्वांटिटी है ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ स्क्वायर करना है। तो एफ नॉट बाय ओमेगा जेड एम का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाई जिहड़ा ये साडे कोल जिहड़ा वो बनता है। और यू एवरेज जिहड़ी है वो असी किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करके यू दी फ्रॉम 0 to टी और उन्होंने डिवाइड करना असी इंटरवल लेंथ नाल, मतलब टी माइनस 0 यानी कि टी दे नाल जिहड़ा असी उन्होंने डिवाइड करना। सो अपॉन इंटैग्रेशन असी की कर रहे हैं, यू नू जिहड़ा वा इस पूरे फैक्टर नू इंटैग्रेट कर रहे हैं और विद दिस इंटैग्रेशन असी क्योंकि इसे सिमिलर टाइप की इंटैग्रेशन पहले भी की सीगी जिहदे विच असी देखिया सी कि कॉस स्क्वायर वाला फंक्शन है तो साइन स्क्वायर वाला जिहड़ा फंक्शन है वो साडा t/2 दे इक्वल आ जांदा सीगा। तो इत्थों अगर असी इनू t/2 दे इक्वल लै लीए, ठीक है, तो t/2 सीगा, इत्थे हाफ सीगा तुहाडे कोल, इत्थे मैं 4 लिख लिया, सिमिलरली इत्थे भी हाफ सीगा, इत्थे भी 4 लिख लिया। तो इस तरीके दे नाल बस इत्थे एक प्रॉब्लम है, इत्थे ओमेगा भी आना चाहिए, ओमेगा जेड एम, क्योंकि एक्स की वैल्यू ओमेगा जेड एम है, एफ नॉट बाय ओमेगा जेड एम इत्थे आना है। तो इत्थे भी हैगा है और इधर भी हैगा, ठीक है। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ा वा ये इत्थे कुछ टर्म्स जिहड़ियां ने तुहाडी कैंसल हो जाणगियां, टी जिहड़ा वा क्योंकि इन्हां दोनों दे विच कॉमन है टर्म्स दे विच, और इस तो इलावा टी नाल डिवाइड हो रहा है तो टी फिर कैंसल हो जाएगा तो तुहाडे कोल यह जिहड़ी है टर्म तुहाडे कोल जिहड़ी है वो बचदी है। तो इनू जिहड़ा वा फरदर एफ नॉट बाय जेड एम का स्क्वायर और एम जिहड़ा वा बेसिकली एम नू असी बाहर निकालिया सो दैट कि साडे कोल सिर्फ एह वालियां टर्म्स रह जान जिहड़ियां फ्रीकुएंसी के उपर डिपेंडेंट ने, क्योंकि एस बाय एम जिहड़ा है वो साडे कोल हुंदा है नैचुरल फ्रीकुएंसी ओहदा होल स्क्वायर। ओमेगा नॉट नू तुसीं लिखदे हो √s/m, तो s/m की हो जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके नाल असी जिहड़ी यू एवरेज हैगी है उन्होंने असी फ्रीकुएंसी दी टर्म्स दे विच असी इस तरीके नाल लिखिया है m/4 एफ नॉट बाय जेड एम दा होल स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह तुसी यू की वैल्यू तो निकाल ली, हुण असी वैल्यू निकालांगे पी एवरेज की, क्योंकि असी क्यू फैक्टर निकाल रहे हैं तो वो सानू यू एवरेज पी एवरेज यह दो चीज़ों की जरूरत हैगी है। तो पी एवरेज जी है अगेन वो असी वैसे पहले निकाली सी लास्ट तुहाडे आर्टिकल दे विच कॉस फाई जो असी r/zm फिल किया सीगा, तो इट वॉज इक्वल टू एफ नॉट स्क्वायर अपॉन zm द होल स्क्वायर r/2। तो ये वालियां बस जी वैल्यूज़ ने इन्हों असी सबस्टिट्यूट कर देना तुहाडी इस इक्वेशन दे विच 2 पाए फिर उपर यू की वैल्यू फिर नीचे पी की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टी। तो 2 पाए इत्थे असी सारी यू की वैल्यू लिख दी है, यह पी की वैल्यू लिखी है और इन्हू 2 टी नाल मल्टीप्लाई किया। तो इनू यह जड़ा वा ये कुछ चीज़ां टर्म्स जिहड़ियां ने वो तुहाडे कैंसल हो जांदियां ने, ठीक है। तो इत्थे फिर टी जिहड़ा वा और यह जिहड़ा 2 पाए है 2 पाए अपॉन टी जिहड़ा है ओमेगा अगेन बन जाता है। तो ये जिहड़ियां इनू लिटल जी सिंपलीफिकेशन करके 2 पाए बाय टी नू बेसिकली सिंपली वही लिखिया होया है। आफ्टर दैट साडे कोल क्यू की वैल्यू आती है ओमेगा m/2m 1 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा। तो ये जिहड़ी है ये तुहाडी हैगी है क्यू वैल्यू फोर्स्ड ऑसिलेटर्स की। तो दिस इज़ द मेन एक्सप्रैशन। हुण असीं देख रहे हैं एज एट रेजोनेंस की हुंदा साडे कोल, रेजोनेंस के उपर जिहड़ी ओमेगा है ओमेगा नॉट है, तो ओमेगा की जगह पे जस्ट फिल ओमेगा नॉट एवरीवेयर हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। तो ओमेगा नॉट m/2r 1 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू 2 नाल फिर ए वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल हैव ओमेगा नॉट m/r। तो ये जिहड़ा है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्यू फैक्टर असी अर्लीयर भी निकालिया सी डैम्ड ऑसिलेटर दे लई भी, तो तुसी ये तो देख सकते हो कि क्यू फैक्टर जिहड़ा वा ये सेम है डैम्ड ऑसिलेटर दा, ते मतलब डैम्ड दी अगर तुसी इहदे विच लगाओ कंडीशन जिवें अगर जी तुसी फ्रीकुएंसी है जी फोर्स्ड ऑसिलेटर की जी फ्रीकुएंसी है अगर तुसी उन्हें ओमेगा नॉट दे इक्वल कर दो तो एक्सप्रैशन जिहड़े ने साडे कोल सेम मिलते हैं।